ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کیا اور پوری جماعت نے سجدہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آیت پڑھی اس میں رونے کا ذکر تھا، مگر ہم میں سے کوئی رویا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں سختی آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ حضرت عمر کا دور ہے جس دور میں صحابہ موجود ہیں۔ ان کو بھی اپنے دل کی سختی کا ڈر ہوتا تھا۔ ہم نہیں مانیں گے کہ ہمارے دل سخت ہیں، ہمارے دل واقعی میں سخت ہیں، یا یوں کہیں کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ جو اس وقت اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھ گیا اس کا دل نرم ہے، لیکن جیسے ہی 3 یا 4 دن گزریں گے یا عید کے دن گزر جائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری نیکی اور تقوی کو اپنے ساتھ بہا کر کہیں لے جاتی ہیں۔ اپنے تقوی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنی خوشیوں کو کنٹرول وے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ انجوائے کرنے کی اور سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ سجدہ انسان کی فزیکلی ہمبلنس شو کرتا ہے۔ آپ کا جسم جھکتا ہے، آپ اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے شو کرتے ہیں، اور انسان کا رونا اس کی ایموشنل ہمبلنس کو شو کرتا ہے کہ اس کا دل بھی اس کے جسم کے ساتھ سنگنائزڈ ہے۔ میرا جسم اللہ کے سامنے نماز میں اٹک بیٹک نہ کر رہا ہو، میرا دل بھی اللہ پاک کے ساتھ اٹیچ ہو۔ حضرت ابوبکر کا ٹائٹل تھا البقا، بہت زیادہ رونے والے۔ ان کے لیے آتا ہے کہ جب مکی دور تھا اور ایک وقت تھا کہ حضرت ابوبکر کو قریش نے منع کیا تھا کہ پبلک میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب حضرت ابوبکر تلاوت کرتے تھے تلاوت میں اتنا روتے تھے کہ جو آس پاس عورتیں، بچے اور نیک دل انسان ہوتے تھے ان کو ایک دم سے فیلنگ آتی تھی اور وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو قریش نے منع کر دیا کہ اب قرآن پبلک میں تلاوت نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کی صحن کی دیواریں گرا دی اور اپنے صحن میں تلاوت کرنے لگے، تو سب کے گھروں میں تلاوت کی آواز جانے لگی، اور آج کل کی طرح کوئی نوائز پولوشن نہیں ہوتی، کوئی گاڑی، کوئی شور نہیں ہوتا تھا آج کے دور کی طرح، بالکل خاموشی میں تلاوت ہوتی تھی، پیور لوگ، کلوز ٹو نیچر۔ ابوبکر تلاوت کرتے جاتے اور روتے جاتے، آس پاس کے لوگ آ کر بیٹھتے جاتے اور سننا شروع ہو جاتے، اور ان میں سے کئی لوگ اسلام لے آتے۔ ایک بار ایک گروپ یمن سے آیا حضرت ابوبکر کے پاس مسلمان ہونے کے لیے۔ اس گروپ کو قرآن پاک سنایا، وہ لوگ فوراً رونا شروع ہو گئے۔ ابوبکر نے کہا، حقالن قلنا قبل ان قست قلوبنا، ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے، ہم قرآن سنتے تھے اور روتے تھے، اب کیا ہوا، ہم یوز ٹو ہو گئے، ہم اتنا قرآن سنتے ہیں اور ہمیں رونا نہیں آتا، جہنم کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں اور رونا نہیں آتا، حساب کتاب کی سختی کا وقت ڈسکرائب ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں رونا نہیں آتا۔ بعض اوقات تراویح میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ذہن میں کیا آ رہا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد یہ کرنا ہے، نماز کے بعد وہ کام کرنا ہے۔ کیوں اٹینشن نہیں ہوتی کہ قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا؟ جب ایک ایک لفظ سمجھ آئے گا تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کی آنکھ آنسو نہ بہائے۔ وہ زبان جو قرآن کی تلاوت کرے، وہ زبان کا امپیکٹ دل پر جاتا ہے، دل کا امپیکٹ آنکھ پر آتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، تو اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں انسان فزیکلی سجدے میں جھک جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں، معافی مانگے، اپنے گناہوں کی، قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ زیادہ تر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان ہماری ایموشنز کی ترجمان ہوتی ہے۔ آپ جب خوش ہوتی ہیں تو آپ کی زبان خوشی کا اظہار کرتی ہے، آپ جب اداس ہوتی ہیں تو آپ کی زبان اداسی کا اظہار کرتی ہے، جب آپ غصہ ہوتی ہیں تو آپ کی زبان غصے کا اظہار کرتی ہے۔ اس موقع پر روک دیا کریں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کچھ ایکسپریشنز میں بہت خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتی، کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان کی ایموشنز کمپلیٹلی آرٹیکلیٹ نہیں ہو پاتے زبان سے۔ تو جب انسان قرآن سمجھتا ہے، اس کے دل میں جو جذبات آتے ہیں، اس جذبات کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر پاتا، تو آنکھیں سپورٹ کرتی ہیں ایموشنز کے اظہار کی، اور پھر اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے آنکھیں روتی ہیں۔ آپ دیکھیں، دنیا میں معمولی سا رزلٹ آنا ہوتا ہے، یا خود کوئی امتحان دیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ آنا ہو، یا بچوں کا رزلٹ آنا ہو، تو کیسے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی فیل ہو جائے تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے۔ ہمیں فیل ہونے پر کوئی آنکھ میں تو نہیں ڈالتا نا، نہ ہی کوئی سزا ملتی ہے، پھر بھی ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔
खौफ से, एक्साइटमेंट से। क़यामत के दिन भी रिजल्ट आउट होगा। कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल होंगे। और वहाँ जो लोग फेल होंगे उनके साथ क्या मामला होगा? वहाँ कोई गले नहीं लगाएगा फेल होने पर। वहाँ डायरेक्ट आग में डाल दिया जाएगा। तो हमें याद नहीं आता, हमारा दिल बिल्कुल कस्वतुल क़ल्ब का शिकार हो चुका है, दिल की सख्ती का शिकार हो चुका है। हमें याद नहीं आता कि वो वक़्त हमारे ऊपर आने वाला है। ज़करल्लाह फ़अदत आइना, ऐसे अल्लाह का ज़िक्र करना तन्हाई में कि आँखें आंसू बहाएँ। अल्लाह के खौफ से रोने के वर्चस एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला इंसान को 2 मर्तबा खौफ का शिकार नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता है कि अगर इंसान ने दुनिया में मेरा खौफ रखा, मैं आखिरत में इसे सिक्योर रखूंगा। क्या हमें जहन्नम की आग नहीं डराती? हिसाब किताब का खौफ नहीं डराता? और अल्लाह ने कहा मैं अपने बंदे को 2 मर्तबा नहीं आजमाऊंगा खौफ से। जो बंदा दुनिया में खौफ रखेगा, मैं आखिरत में उसे हिफाजत दूंगा। और जिसने दुनिया में अल्लाह का खौफ उतार कर फेंक दिया, मैं उसे आखिरत में खौफज़दा करूंगा। और जिसे अल्लाह खौफज़दा करेगा उसे कोई अमन, कोई सकून, राहत नहीं मिल सकती। अल्लाह हमें इस खौफज़दगी से बचाए। एक रिवायत में आता है, 2 आँखों को जहन्नम की आँख नहीं छुएगी। और ये कौन सी 2 आँखें हैं? वो आँख जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से रोती है, उसे जहन्नम की आग टच भी नहीं करेगी, उसे बचा लिया जाएगा। हम रोते हैं दुनिया के लिए, हम फ्रेंड्स के लिए रोते हैं, हम रिश्तेदारों के लिए रोते हैं, हम दुनिया ना मिलने पर रोते हैं, हम दुनिया के छिन जाने पर रोते हैं, हम बहन भाइयों की खफगी की वजह से रोते हैं, हम अपने शौहरों के लिए रोते हैं। ये हम किन चीज़ों पर रोते हैं? और जहाँ हमें रोना चाहिए हमें वहाँ रोना नहीं आता। हमें अपनी हालत पर रोना चाहिए। हर चीज़ के लिए रोते हैं। अगर नहीं रोते तो अल्लाह के लिए नहीं रोते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जुमला है कि अल्लाह के सामने रोए। अगर अल्लाह के सामने रोना नहीं आता तो रोने वाला मुँह बना लो। तो रोइए अल्लाह के सामने, जितना अपने गुनाहों को सोच कर रो सकते हैं। यजीद इब्न मैसरा कहते हैं, इंसान का रोना 7 तरह का होता है। नो डिसाइड कि आप कैसे रोएंगे। एक होता है रोना फराह का रोना, खुशी में रोना, जैसे हिजरत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हज़रत अबू बकर को बताया। एक होता है रोना फराह का रोना, खुशी में रोना, जैसे हिजरत के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हज़रत अबू बकर को बताया कि अल्लाह ने मुझे कहा कि आप मेरे कंपेनियन होंगे जब मैं मक्का से हिजरत करूँगा। तो हज़रत अबू बकर रो पड़े। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने सिर्फ सुना था कि लोग खुशी में रोते हैं, लेकिन इस दिन मैंने अपने वालिद को खुशी से रोते हुए देखा। अल बुका मिनल फराह, खुशी के अंदर रोना। एक होता है रोना फराह के अंदर, एक होता है अल बुका मिनल हुज़न, गम की वजह से रोना, उदासी की वजह से रोना, किसी प्यारे के इंतकाल की वजह से रोना। क्या इसकी इजाज़त है? नहीं, बिल्कुल इजाज़त है। आँख आंसू बहाती है, दिल गमज़दा है, लेकिन ज़बान पर अल्लाह के लिए शिकवा नहीं है। रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं, जब आपके बेटे इब्राहीम का इंतकाल हुआ और कोई एक मौका पर नहीं, कई मौके पर आप रोए। आपकी 3 बेटियों का इंतकाल आपकी ज़िंदगी में हुए, सहाबा का इंतकाल आपकी ज़िंदगी में हुए, हज़रत हमज़ा का इंतकाल आपकी ज़िंदगी में हुआ। आप रोते थे। ना रोना तो सख्ती की अलामत है दिल की, रोना रहमत है। हाँ, लोगों के सामने मत रोएं, लोगों के सामने अपना दुख मत खोलें। लोग आपका दुख नहीं सुनना चाहते, लोगों के पास टाइम नहीं आपका दुख सुनने का। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे आपके पीठ पीछे। मत रोएं लोगों के सामने, रोएं उसके सामने जो आपके रोने की कदर करेगा। रोएं उसके सामने जो आपके गम को दूर कर सकेगा। रोएं उसके सामने जो आपके गुनाहों को माफ़ कर सकता है। रोएं उसके सामने जो आपके एक एक आंसू का कदरदान है। तो एक रोना होता है अल बुका मिनल हुज़न, गम में रोना। तीसरा होता है अल फज़ा, कैसा रोना? शॉक्ड होकर रोना। इतना शॉक्ड हो जाना, कैन यू इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ शॉकनेस? इतना शॉक्ड हो जाना कि रोना शुरू कर देना। और अहादीस बताती है कि वो इंसान जो मोमिनीन नहीं होंगे, जो अस्हाबुल मैमना के अलावा लोग होंगे, वो तमाम इंसान जब कब्रों से निकाले जाएंगे तो पूरा इन्वायरमेंट देख के इतना खौफज़दा होंगे, उस फिज़ा की कैफियत में रोएंगे, शॉक्ड होंगे, इतना रोएंगे और कहेंगे कि ये कैसा वक्त है कि जिसने हमें हमारी कब्रों से सोते हुए उठा दिया। चौथा रोना होता है अल वजा,
वाओ जीम आइन, और ये रोना होता है जहन्नुमी का रोना। जहन्नुमी रोएंगे, और जहन्नुम के अंदर सिर्फ आग का अजाब नहीं होगा, सिर्फ ज़कूम का अजाब नहीं होगा, सिर्फ खोलते हुए पानी का अजाब नहीं होगा, सिर्फ फरिश्तों के लैशेस नहीं होंगे, बल्कि जहन्नुमों का शोर होगा, उनका कराहना, उनका अजियत से चीखे मारना। ये सब भी बाकी जहन्नमी लोगों की तकलीफ में इजाफा कर रहा होगा। 5वां रोना है रिया का रोना, शो ऑफ का रोना। अल्लाह हमें हर तरह के रिया से बचाए। जेन्युइन रोइए, अगर लोगों के सामने भी रोना आए और जेन्युइन है तो मत डरिए, कोई ज़रूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मत डरिए कि मैं लोगों के सामने आंसू नहीं बहा सकती, लेकिन लोगों के लिए मत रोइए। जो रिया के लिए रोता है, अल्लाह क़यामत के दिन इस रोने पर उसे सज़ा देगा। 6ठा रोना आता है शुक्र में रोना, इतना खुश होना कि उसकी आंखों से उसकी जज्बात का छलक जाना। हज़रत ज़करिया को जब बेटे की बशारत मिली तो वो उसी शुक्र में रोए थे। और आखिरी रोना होता है खशियत में रोना, अल बुका फ़ी खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत में रोना, जिसमें अल्लाह का बंदा चाहे कुरान सुनते हुए रोए, चाहे कुरान पढ़ते हुए रोए, चाहे बुरी सूरत से बचने के खौफ से रोए, चाहे अच्छी एंडिंग की दुआ करते हुए रोए, चाहे किसी कुरान की महफिल में अपनी आखिरत याद करने पर रोए। ये सारे मुख्तलिफ अंदाज हैं जो बताते हैं कि रोना इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्ने उमर से हदीस आती है, आपने कहा कि जब तुम पेरिश नेशंस के पास से गुजरो, यानी उन कंडरात के पास से गुजरो जिन कौमों को तबाह किया गया, तो वहाँ से रोते हुए गुजरो। बाज़ लोग डेड सी के पास जाते हैं और डेड सी के पास खड़े होकर सेल्फीज़ खींचते हैं और खूब मुस्कुरा कर सेल्फीज़ पोस्ट भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, डेड सी वो इलाका है जहाँ कौम लूत को दफन किया गया था। पूरी बस्ती उलट दी गई थी और उस बस्ती को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के एक विंग से इतना ऊपर उठाया गया था कि पहले आसमानी दुनिया के फरिश्तों ने उन लोगों की चीखों को सुनी और उन लोगों ने पहले आसमानी दुनिया के फरिश्तों की तस्बीह सुनी, और इतना ऊपर उठाने के बाद उस बस्ती को ज़मीन पर पटक दिया गया। आपने कहा, जब इस जगह पर जाएं तो तेज़ी से गुजरें, और सिर्फ तेज़ी से ना गुजरो बल्कि रोते हुए गुजरो। ये एहसास और इबरत के साथ गुजरो कि तुम्हें पता चले कि ये वो लोग हैं जिनकी नाफरमानी की वजह से उनको दुनिया में भी सज़ा दी गई और उनको आखिरत में भी सज़ा दी जाएगी। इबरत लो। इबरत से एक लफ्ज़ बना है अबरा। अबरा अरबी ज़बान में एक तरह के आंसू होते हैं। जब दिल में इबरत इतनी आ जाए, जब दिल में किसी इवेंट का, किसी इंसिडेंट का इतनी मीनिंग समझ आ जाए कि वो मीनिंग आपको ज़बान से समझाने ना आए, तो आपकी ज़बान से जो आंसू निकलते हैं उसे अबरा कहते हैं। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि गहराई के साथ चीज़ों को समझो। जिसके आंसू निकलते हैं उसकी दिल की सख्ती ख़त्म हो जाती है, दिल का क्रस्ट टूटता है बाहर वाला, और नरम दिल के अंदर वाला जो रूह को ग्रो करने का मौका मिलता है, जो है वो कुरान में आता है। और नरम दिल वाले जो हैं वो रूह को ग्रो करने का मौका मिलता है। कुरान में आता है, असल में इल्म वाले वही हैं जो आखिरत का खौफ रखते हैं। उल्मा सिर्फ स्कॉलर्स नहीं, इल्म वाले आप सब भी इल्म वाले हैं। जिसके पास कुरान का इल्म आ जाए और जितना इल्म आ जाए, याद रखें, अगर अल्लाह का खौफ आपको नहीं आता और अल्लाह के खौफ से रोना नहीं आता, तो कुरान की तिलावत ऊंची आवाज़ में लगा लीजिए। कुरान की आयत का इम्पैक्ट होता है कि खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल पर एक कैफियत तारी होती है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 में आता है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। वो लोग जब इनको अल्लाह की याद आती है उनके दिल खौफ से हिल जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब उन पर कुरान की आयत तिलावत की जाती है उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। ये रोने की कैफियत अपने और अपने रब के दरमियान में, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। रमज़ान इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिसमें आप अल्लाह के सामने रोएं, गड़गड़ाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह, मुझे अपने गुनाहों का खौफ है, आप मुझे माफ़ कर दें, मेरे गुनाहों को मेरे नामे अमाल से हटा दें। अपने आखिरी स्टेशन को याद किया करें, नौजवानी में मौत याद करना और नौजवानी में अल्लाह के खौफ से रोना, इससे बड़ा एजाज़ और कोई नहीं हो सकता। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए सारे अमल को जो हमने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, अल्लाह इसको हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए। I wasn't afraid of the world, been hiding in my bed for days.
I don't